Hello everyone, my name is Swami Agrawal and I welcome you all in this TCube Gate Classes initiative. So today I'll be starting with module number 4 where we'll study about various materials properties and how to test those properties. Okay, so let's crack the gate. So in this module number 4, let's see what are the different mechanical properties of the materials. Okay, so first one is the hardness. So hardness is the measure of मटीरियल्स रेजिस्टेंस टू द इंडेंटेशन. ठीक है, लाइक मटीरियल के ऊपर में कोई डेंट ना आए, कोई स्क्रैच ना आए, तो मटीरियल को हम क्या बोलते हैं, गेट दैट मटीरियल इज हार्ड. ओके, सो रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज योर व्हाट इज हार्डनेस. ओके, so next is we have tensile strength. So this is the maximum stress that can be sustained by the body when subjected to the tensile force. Okay, so it is the maximum stress under the stress strain curve that you usually study in your strength of material class. Okay, so over here we can see that increase the tensile strength, so hardness will follow. Okay, so hardness and tensile strength are directly proportional. You increase the tensile strength, okay, increase the tensile strength, ultimate tensile strength, okay, hardness will follow. So hardness will also increase. Okay, so as what we have seen in the case of a brittle material or a ductile material. Okay, so we'll discuss brittle material and ductile material also. So this is the your regular schematic of a stress strain diagram of any material called, I think, mild steel. Let's take mild steel. Okay, so mild steel is what? It is a low carbon steel. Okay, where its percent of carbon is below 0.25%. Okay, so this is a stress strain diagram which we get from the tensile test. Okay, which we have plotted, which we have done on the ultimate tensile test machine. Okay, UTM machine. So in this you can say this particular one, this is the proportional limit. Okay, up till where your Hooke's law is valid. Okay, Hooke's law is valid till proportional limit. So what is the Hooke's law? That stress is proportional to the strain. Okay, so this is valid up to the proportional limit. Okay, so then we have yield point from where we get plastic deformation. So from yield point the plastic deformation starts. Okay, and then this is the strain hardening region. Okay, so as you are increasing the strain, the value of stress is also increasing. Okay, the value of stress is increasing for the same amount of the strain. So this region is known as strain hardening region, है ना. मतलब आपको सेम अमाउंट का स्ट्रेन पाने के लिए आपको और स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है ना. सो दिस काइंड ऑफ फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग. सो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस एंड एट दिस मैक्सिमम पॉइंट, ओके, एट दिस मैक्सिमम पॉइंट यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स द स्ट्रेस the value of stress keeps on decreasing till the fracture point. Okay, so this particular point is your ultimate strength point, or you can say tensile strength point. Okay, so this is sigma ut. Okay, ultimate tensile strength. Since you are calculating this stress strain diagram by doing the tensile test, so this will be known as ultimate tensile strength. Okay, and at this point this sort of necking will start. Okay, this necking, you can see this necking will start. Okay, so and then it will have a cup and cone kind of fracture. Okay, cup and cone kind of fracture. This we will study under your ductile fracture also. Okay, so next is your toughness. Okay, so what is the toughness? So it is the measure of the ability of the material to absorb the energy up to the fracture limit, है ना. तो मतलब मटीरियल फ्रैक्चर होने से पहले कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. सो दैट इज गिवन बाय द टफनेस. ओके, सो इट इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द पॉइंट ऑफ द फ्रैक्चर. ठीक है, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक का जो हमारा कर्व है वो पूरा का पूरा आपका क्या निकल के आएगा, टफनेस आपका बताएगा. ठीक है, मतलब ए पॉइंट से लेके, अगर इस मटेरियल के डक्टाइल मटेरियल की बात हो रही तो ए पॉइंट से लेके ये पूरा बी डैश तक का जो आपका यहाँ पे फेलियर पॉइंट आ गया, तो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आपका क्या डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा आपका टफनेस का वैल्यू. ओके, ये बताएगा आपका टफनेस का वैल्यू. ठीक है, सो दिस ब्रिटल मटेरियल्स हैव लो टफनेस एंड डक्टाइल मटेरियल्स हैव high toughness. Okay, so you can see this is the this
brittle material is given by this B point. Okay, so this area under the curve ABC is your brittle material, है ना. ये पूरा आपका जो ये है पूरा ये आपका brittle material का है यहाँ तक, ठीक है. So why the toughness value is less? Because there is no appreciable plastic deformation. यहाँ पे कोई plastic deformation हो नहीं रहा है significant amount का. तो ये क्या हो रहा है? So it is getting it is getting failed before any significant plastic deformation. Okay, so that's why this area under the curve is very less. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं that in case of a brittle material the maximum stress up till which it can be loaded is more than the of what we get from the ductile material, which means sigma ut of brittle material is more than sigma ut of a ductile material. Okay, so this is already I have told in the previous class also. Okay, so next is the fracture. So fracture, it is the separation of solid body into two or more parts under the action of the stress. ठीक है, मतलब fracture which means failure ना. failure कब होगा? एक काइंड का failure कब होगा? जब आपका मटेरियल दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में ब्रेक होके टूट जाए. ठीक है, so it occurs because of presence of micro defects in the material known as cracks, है ना. तो crack generation होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, है ना. क्रैक अलग अलग टाइप से जनरेट होता है. एक अपना उसमें होता है कि ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन. ठीक है, तो हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो क्रैक आपका डेवलप करेगा. और क्रैक जैसे जैसे आपका इनिशिएट होता है फिर उसके बाद प्रोपोगेट करता है ना, मतलब बढ़ता है वो. और एक बार बढ़ के एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है तो वो क्या करेगा? मटेरियल को वहाँ से ब्रेक कर देगा. ठीक है, सो इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं आपके? जैसे ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, सॉरी डक्टाइल फ्रैक्चर है, ब्रिटल फ्रैक्चर है, फटीग है, देन क्रीप है. ओके, सो हाउ द क्रैक प्रोपोगेट्स वो आप देख सकते हैं आपके घरों में. जो भी आपके विंडो पेन्स होते हैं ना, विंडोज़ लगे होते हैं ग्लास पेन्स के, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार अगर कोई क्रैक आ गया, कभी आपने क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल लग जाए आपके विंडो पेन्स में, तो एक पतली सी आपको ऐसा क्रैक लाइन ऐसा दिखना शुरू हो जाएगी ना. ये आपका विंडो पेन है, यहाँ पे एक पतला सा ऐसा कुछ ऐसा ये ऐसा क्रैक पेन आपको इस तरह से दिख जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्रैक जनरेशन दिखेगा. अब क्या होता है, धीरे 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 विद टाइम ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ना शुरू करेगा क्रैक, है ना. बढ़ता रहेगा क्रैक, एक तरह से क्रैक पूरा एक डेवलप हो जाएगा एक पूरे साइड से. तो क्या होगा, आप हल्का सा भी उसको टच कर दोगे ना तो ये क्या करेगा, ये पूरा टूट के बाहर निकल आएगा. ठीक है, क्योंकि उसका कुछ सपोर्ट नहीं है. पूरी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड आपके जो हैं टूट चुके हैं ग्लास पेन के. एक साइड से पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया है तो उसको होल्ड करने वाला कुछ नहीं, तो ये पूरा का पूरा ऐसा बाहर निकल के हो सकता आ जाए. ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं हाउ द क्रैक इज प्रोपोगेटिंग. ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप तोड़ने बैठ जाओ अपने घर की विंडोज. ओके, सो नेक्स्ट इज द डक्टाइल फ्रैक्चर. So it is a type of a fracture which takes place by slow propagation of crack with appreciable plastic deformation. ठीक है, मतलब फेलियर होने से पहले या फिर मटेरियल टूटने से पहले, ऑब्जेक्ट टूटने से पहले कुछ आपका एक अच्छे अमाउंट का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा. ठीक है, तो आप कहलाएंगे वो फ्रैक्चर को आप कहेंगे डक्टाइल फ्रैक्चर. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट द क्रैक इज प्रोपोगेटिंग वेरी स्लो. स्लो प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक इज ओवर हियर. ठीक है, so in case of a brittle fracture this takes place by the rapid propagation of crack where there is negligible deformation. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. थ्योरेटिकली बात करें तो नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. ओके, एंड द रेट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक इज वेरी फास्ट. ठीक है, रैपिड प्रोपोगेशन. ओके, सो इट इज वेरी फास्ट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक हाउ यू डिफाइन एनी डक्टाइल मटीरियल. ओके, हाउ यू डिफाइन अ ब्रिटल मटीरियल. सो डक्टाइल मटीरियल यू डिफाइन व्हेन बिफोर फेलियर इफ द स्ट्रेन वैल्यू इज, है ना, मोर देन 15%. Okay, before failure if the strain value is more than 15%, then you can call that material as a ductile material. In case of a brittle, how you define any material brittle? So before failure, okay, before failure, if the strain value, okay, before failure, if the strain value is less than 5%, okay, less than 5%.
अगर लेस देन 5% है स्ट्रेन का वैल्यू बिफोर फेलियर, तो आप उस मटेरियल को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उसको ब्रिटल मटेरियल. ओके, so this is how you define like what is the brittle material and what is the ductile material with the help of strain. Okay, so strain more than 15% ductile material, strain less than 5% so brittle material. Okay, so this is you can say failure mechanism. Okay, what is happening, failure mechanism you can say in ductile material. Okay, ductile material है. So this is your like after the necking has formed. Okay, so like initially the object was like this one. Okay, so and you have subjected it to some tensile load. Okay, so tensile load it is being subjected to. So afterwards some sort of necking will form after near about your ultimate tensile strength. Okay, ultimate tensile strength के बाद में ऐसा necking start हो जाएगा. So what happened after this necking is taking place? So यहाँ पे area of cross sectional क्या हो गया आपका, कम हो गया, और धीरे धीरे आपको यहाँ पे ना इस तरह से voids बनने शुरू हो जाएंगे, है ना, मतलब आपके cracks formation शुरू हो जाएगा. So अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये आपके voids जो होंगे आपस में ये मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप एनी हाउ आपका लोड तो लगा ही हुआ है. ठीक है, लोड इज देयर ओनली, यू हैव नॉट डी स्ट्रेस्ड, है ना, डी मतलब डी लोडिंग तो कर ही नहीं है आपने, लोड को तो हटा, अनलोडिंग तो कर ही नहीं है, लोड तो आपका लगा हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से आपके क्रैक्स आपके बिल्टअप होने शुरू, कोएलिसेंस बोलते हैं ना जिसको, इस तरह से वॉइड्स आपके फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, है ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं वॉइड्स और ये जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से ये जुड़ के एक बड़ा सा आपका क्रैक बना लेगा. ओके, सो दिस वॉइड कोएलिसेंस टू फॉर्म क्रैक, सो एक बड़ा सा क्रैक बन जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा, टीयरिंग, एक तरह से टीयरिंग होना शुरू हो गया है, और फिर आखिरी में ये इस तरह से कप एंड कोन आपको इस तरह से ये जो फ्रैक्चर निकल के आता है, तो इसको आप बोलते हैं कप एंड कोन फ्रैक्चर. ओके, कप एंड कोन फ्रैक्चर. ओके, दिस इज स्पेसिफिकली इन द डक्टाइल मटेरियल ओनली, है ना, ये डक्टाइल फ्रैक्चर में आपको कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है. ठीक है, कप एंड कोन फ्रैक्चर जहां मिलेगा मतलब सीधा सीधा बोलना है डक्टाइल मटेरियल है या फिर डक्टाइल फ्रैक्चर है. ओके, देन कमिंग टू द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच इज अ फटीग फेलियर और फटीग स्ट्रेंथ. लेट्स सी. ओके, सो इसमें क्या होता है, लाइक अभी तक हम प्रीवियसली हमने जो किया था वहां पे जो लोडिंग थी, ठीक है, दैट टाइप ऑफ लोडिंग वाज स्टैटिक लोडिंग ना, स्टैटिक लोडिंग विच मीन्स द लोड magnitude okay is not changing with time, टाइम के साथ में आपका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा. मतलब अगर मैं लोड वर्सेस टाइम का डायग्राम बनाऊं तो ये आपका कुछ इस तरीके से है ना, तो ये कहलाता है आपका स्टैटिक लोडिंग. आई थिंक टाइप्स ऑफ लोड आप लोग ने पढ़ रखा होगा इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास बाय मनीष सर, है ना. सो चलिए, सो in this what is happening, so when a body is subjected to the cyclic loading, you know, cyclic loading or the you can say a dynamic kind of loading, so here this, so this will be loading will be somewhat like this, you know, loading condition, so it is changing with time. Okay, so this is your cyclic loading or you can say dynamic loading. Okay, dynamic loading or cyclic loading. Okay, so what happens when it is subjected to the cyclic loading, so it will fail at a stress okay lower than the tensile strength after some cycle. ठीक है, तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसके आने से पहले ही आपका बॉडी क्या करेगा, फेल कर जाएगा इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू अ साइक्लिक लोडिंग. ओके, मतलब सिग्मा यूटी से बहुत पहले आने से बहुत पहले ही वो फेल कर जाएगा इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ डायनामिक लोडिंग. ओके, so let me just erase all this. So this premature failure of the body under the fluctuating load after some cycles is called as fatigue strength. Okay, fatigue or fatigue strength. Okay, so ये क्या हो रहा है आपका premature failure हो रहा है because of what, cyclic loading or fluctuating loading, both are. So fluctuating loading is type of a cyclic loading, so like you have repeating loading, okay, repeating type of loading condition, then you have reversed type of loading. Okay, so these different types of loads are there. So this
I will not cover. This is already, I think, covered in the strength of material class. If it is not covered, then please give a message on the chat box. Okay, so I will take it in the next class. Okay. ओके तो ये बात थी फटीग स्ट्रेंथ की. अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द फटीग लाइफ. ओके सो द नंबर ऑफ साइकिल्स टू कॉज द फेलियर एट अ गिवन स्ट्रेस इज नोन एज द फटीग लाइफ. ठीक है, लाइक आपको क्या करना है इस केस में, यहाँ पे स्ट्रेस को फिक्स करना है और आपको नंबर ऑफ साइकिल्स को इंक्रीज करते रहना है. फिर आपको ये देखना है कि गिवन स्ट्रेस पे ऐसा कौन सा नंबर ऑफ साइकिल आएगा जहाँ पे मटेरियल आपका फेल हो जाए. ठीक है, तो गिवन स्ट्रेस पे अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल पे आपका मटेरियल फेल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इसको फटीग लाइफ. ओके, तो ये बात थी यहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ की. यहाँ पे आपको पता चलता है कि सिग्मा का क्या वैल्यू है फॉर अ गिवन साइकिल. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एन का क्या वैल्यू है फॉर अ गिवन स्ट्रेस. ओके, चलिए इसको सब और समझते हैं विद दिस योर एस एन कर्व. ओके, सो दिस इज योर एस एन कर्व. ये आपका फटीग लाइफ एंड फटीग स्ट्रेंथ बताता है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर कर्व इज वैलिड फॉर द स्टील्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ वी कैन से एज यू आर कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस नंबर ऑफ साइकिल्स, है ना. तो ये आपका कैसा है, लॉग स्केल पे है, लॉग स्केल पर है ये. सो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस नंबर ऑफ साइकिल, क्या हो रहा है, आपका जो फटीग लिमिट है यहाँ पे, फटीग नॉट फटीग लिमिट, वी कैन से दिस स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस ओवर हियर, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, सो दैट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. ओके, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस का वैल्यू कम हो रहा है. ठीक है, मतलब क्या है, अगर आपको चाहिए कि आपका जो मटेरियल है ना, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी टाइम तक वो रन करे, ठीक है, तो उसके लिए उसको कम स्ट्रेस पे उसको लोड कराना पड़ेगा. ठीक है, और अगर आपने उसको ज़्यादा स्ट्रेस पे लोड करा दिया है तो वो कम समय के लिए चल पाएगा, है ना. यू कैन सी एज यू आर कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस वैल्यू, एज यू आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे आपका स्ट्रेस वैल्यू थोड़ा कम था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आया, है ना. जिस तरह से आप इसको स्ट्रेस वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 2 to 3, so you can see the number of cycles are also decreasing from 10⁵ to 10⁶, and then 10⁶ to 5 to 10⁴. You know, so this is keep on decreasing the number of cycle. Okay, but at a particular point, at some particular cycle, you can say, है ना. So at a particular, you can say stress value, at a particular stress value, let me rephrase, at a particular stress value, okay, sigma, let's say sigma FL, है ना, फटीग लिमिट सिग्मा FL, क्या होगा कि यहाँ पर आप कितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स पे बढ़ा दें तो वो फेल नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फटीग लिमिट, है ना. ये जो स्ट्रेस वैल्यू है ये फटीग लिमिट है. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस which a body can sustain for infinite number of cycles. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस वैल्यू ऐसी आएगी, है ना, यहाँ पर स्ट्रेस वैल्यू एक ऐसी आएगी कि जहाँ पर आप नंबर ऑफ साइकिल्स आप कितना भी बढ़ा देंगे तो आपका जो मटेरियल है वो फेल नहीं होगा. ठीक है, तो उस स्ट्रेस की वैल्यू को हम फटीग लिमिट बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे फटीग लाइफ की, सो अगर आप जैसे ये बात कर लिए, है ना, जैसे इफ़ यू वांट दिस पर्टिकुलर ए पॉइंट, है ना, यहाँ पे आपने कुछ सिग्मा ए से आप इसको लोड करा रहे हो, तो फटीग लाइफ क्या होगी ना, इस पर्टिकुलर सिग्मा ए के लिए ये होगी आपकी 10⁵, है ना, ये हो जाएगी इसके लिए फटीग लाइफ. ठीक है, फटीग लाइफ हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, जब बॉडी इस स्ट्रेस पे सब्जेक्टेड रहेगी. आप स्ट्रेस को बढ़ा दीजिए, ठीक है, सिग्मा यहाँ पे बी पॉइंट पे आप आ जाइए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो मिलेगा फटीग लाइफ वो ये मिलेगा. आप स्ट्रेस को कम कर दीजिए, इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आपको जो फटीग लाइफ मिलेगा वो 10⁶ मिलेगा. ठीक है, तो ये जैसे किस स्ट्रेस पे बात कर रहे हैं वो चीज़ आपका डिपेंड करेगा. ठीक है, लाइक स्ट्रेस को बढ़ा देंगे फटीग लाइफ आपका कम हो जाएगा, स्ट्रेस को घटा देंगे फटीग लाइफ आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव स्क्रीप. सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन. यहाँ पे बॉडी आपका सब्जेक्टेड में है अगर स्टैटिक कंडीशन में, है ना. तो जैसे आपने घरों के कभी गौर किया हो तो अगर कोई मेटालिक वायर जैसे आपका बंधा हो, कपड़े वपड़े सुखाते हो और अगर मेटालिक वायर से सुखाया, या फिर देख सकते हो ओवर द टाइम
जो आपके वायर्स लटके हुए होते हैं ना, जो बिजली के खंभे में जो वायर्स लटके होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस जो होते हैं, सब मेटेलिक ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है वहाँ पे। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो ऐसा थोड़ा सा टाइट टाइट बंधा रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ महीनों कुछ सालों के बाद में कैसा होगा ना, ऐसा थोड़ा सा ऐसा सैग कर जाएगा, ऐसा धीरे से ऐसा ऐसा नीचे झुकने लगेगा ना, लटकने लगेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम क्रीप बोलते हैं ना, इस चीज़ को हम क्रीप बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो यूजुअली ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका हाई टेम्परेचर ऑपरेटिंग कंडीशंस में, है ना, हाई टेम्परेचर ऑपरेटिंग कंडीशंस में यूजुअली ये सब आपके पाए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑल मटीरियल टाइप्स, ठीक है, तो मैं हर मटीरियल टाइप में मिलेगा, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। ओके, ऑल मटीरियल टाइप्स। फॉर मेटल्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द टेम्परेचर्स ग्रेटर देन 0.4 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है दिस Tm इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, है ना। तो मतलब आपके घरों में जो वायर्स लगे होते हैं उनमें भी क्रीप होता है, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे घर के वायर्स आपने ऐसे ऐसे स्ट्रांगली इसको बांध के रख देते हैं, तो धीरे धीरे आप इसके ऊपर में कपड़े तो टांगते ही हैं, कपड़े टांगते हैं लोडिंग की वजह से, धीरे धीरे क्या करेगा, इधर से वो ऐसा सैग कर जाएगा। एक बार सैग कर जाएगा तो फिर ये ऐसे लटका ही रहेगा, है ना, तो फिर वो एक तरीके से ये आपका क्रीप टाइप का ही चीज़ कुछ निकल के आता है। ओके, तो मेटल्स में कब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ये आपका एट नियर अबाउट 0.4 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, है ना। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से ये जो 0.4 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेटली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आसपास की बात हो रही है, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आसपास की बात है ये। ओके, सो बट इन सम मेटल्स लाइक जिंक, टिन एंड लेड क्रीप एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड, है ना। तो लाइक ये आपके क्या कहलाते हैं, लो टेम्परेचर क्रीप है, जहाँ पे आपका एट रूम टेम्परेचर यू फाउंड दिस काइंड ऑफ फिनोमिना। ओके, सो वी हैव मटीरियल्स लाइक टंगस्टन एंड मोलिब्डेन हु हैव वेरी, बोल सकते हैं दे हैव वेरी गुड और हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो इसकी वजह से दे हैव गुड क्रीप रेजिस्टेंस। ओके, एंड सो क्रीप रेजिस्टेंस अच्छा है तो इनको हम एज अ रिफ्रैक्टरी मटीरियल्स भी यूज कर सकते हैं ना। रिफ्रैक्टरी मेटल्स, रिफ्रैक्टरी मेटल क्या होता है, लाइक दोज हु कैन रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। The material which can resist the deformation at high temperature are termed as refractory material। ये हमने देखा था जब हमने सिरेमिक का बताया था ना, सिरेमिक इज यूज्ड एज फर्नेस लाइनिंग, है ना। फर्नेस लाइनिंग में क्यों यूज होता है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बन जाते हैं, सिरेमिक आपके ये बन जाते हैं रिफ्रैक्टिव मटीरियल्स, ठीक है। और मेटल्स में भी कुछ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जिसमें से होता है टंगस्टन होता है, मोलिब्डेनम होता है, इनके भी काफ़ी अच्छे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके, तो ये बात थी मटेरियल्स प्रॉपर्टीज की। अब ये डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या है, अब इनको आप कैसे टेस्ट करोगे। ओके, हाउ यू विल फाइंड, सो एंड व्हाट इज द नीड, तो नीड क्या है, बिकॉज ये रिक्वायर दिस मटेरियल प्रॉपर्टीज, है ना, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ है। सो डिज़ाइन इनपुट की तरह आपको इसको यूज़ करना है ना। किसी भी आप जैसे मशीन डिज़ाइन में आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, बोल्ट डिज़ाइन करना है, फ्लैंज डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो उसका मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन क्या है। तो उस मैक्सिमम लोडिंग कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे कौन सा मटीरियल आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि उस हिसाब से उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा, परसेंट ऑफ इलोंगेशन चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज वही सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर एनी एप्लीकेशन। तो बोल्ट के लिए कौन सा यूज़ करना है, स्प्रिंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, स्क्रू ड्राइव के लिए कौन सा यूज़ करना है, स्क्रू जैक के लिए कौन सा यूज़ करना है ना। सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स व्हेन यू हैव द डेटा ऑफ द मटीरियल्स, है ना। डेटा ही नहीं होगा मटीरियल प्रॉपर्टीज का, तो कैसे आप किसी भी मटीरियल को सेलेक्ट करोगे किसी भी उसके फंक्शंस के लिए। ओके, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल आफ्टर द हीट ट्रीटमेंट, कि हीट ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव करी या नहीं करी। ओके, सो यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेक द मटीरियल प्रॉपर्टी आफ्टर प्रोसेसिंग मेथड्स लाइक वेल्डिंग एंड एक्सट्रूजन, है ना। इसके बाद आपको देखना है कि फर्दर ये प्रोसेसिंग के बाद में प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आया। एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू चेक द केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके,
सो केमिकल कॉम्पोजिशन को भी आप चेक करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दीज आर द बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड ऑफ मटेरियल टेस्टिंग. तो आते हैं, सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल टेस्टिंग. सो पहला होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ मैकेनिकल टेस्ट. ठीक है, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और मैकेनिकल टेस्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप सैंपल को आप टेस्ट कर रहे हो उसको आप ब्रेक करते हो प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, उसको हार्म करते हैं ना. मटेरियल एक बार इन टेस्ट में चला जाएगा तो वो उसके बाद किसी भी काम का रहेगा नहीं. ठीक है, इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड. सो लाइक यू विल यूज दैट particular sample of the particular metal and it will go under these mechanical test or destructive test, and again it will be broken into 2 or 3 pieces and then it will be discarded. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, so you measure the strength, hardness, toughness, ये सब आप measure करते हैं. Okay, so we have example of this mechanical testing as tensile test है हमारे पास में, impact test है, hardness test है. Okay, different kind of testings are there. Then next is non-destructive kind of test. ठीक है, यहाँ पर मटेरियल जो होगा, जो भी सैंपल होगा, वो उसको आप ब्रेक नहीं करते हो. ठीक है, उसको आप टेस्ट करोगे और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो. लाइक टेस्ट करके अगर वो पास हो गया है, इफ़ इट इज़ पास इट्स क्वालिटी चेक में वो पास हो गया, इट कैन बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, जो भी जिस फंक्शन के लिए भी उस सैंपल को आपने बनाया है. सो इट विल बी पास्ड एंड इट विल बी वेंट फॉर योर सेलिंग और वट एवर द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मटीरियल इज. ओके, सो there is no damage to the sample being tested. Okay, so the samples are tested before being used and as routine maintenance check है ना. तो routine maintenance check के लिए आपको obviously किसी चीज़ को तोड़ना नहीं है, बस आप उसको देखना है कि ठीक है whether the things is happening okay or not, है ना. सो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, रेडियोग्राफी है, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट है, देन वी हैव मैग्नेटिक टेस्ट एंड विजुअल चेकिंग में भी आपका आता है एनडीटी, है ना. तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके मैकेनिकल आपके जो मटीरियल टेस्टिंग है, तो इन सबको समझेंगे. आज हम बस एक थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एक पार्ट देख लेते हैं. देन नेक्स्ट ऑल दिस टेस्ट आई विल कवर इन द अपकमिंग क्लास. ओके, सो विल टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. So it includes the method where the material is broken down in order to determine the mechanical properties such as strength, toughness and hardness. मतलब मटेरियल को तोड़ के, है ना, फिर आप उसको उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस एंड हार्डनेस को समझेंगे. ओके, सो इसका बेसिक्स है, बेनिफिट्स क्या क्या है. सो वेरीफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, हेल्प टू रिड्यूस द फेलियर, एक्सीडेंट एंड कॉस्ट, एंड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ फेल्ट्स एंड एंश्योर विद द कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस. है ना, एकदम बेसिक्स है, जस्ट थ्योरी है, नथिंग एल्स. डू रीड इट, है ना. जो ऑब्वियसली टेस्टिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको क्वालिटी चेक करना है, यू हैव टू चेक द क्वालिटी. हाँ, तो क्वालिटी चेक करोगे तभी आप रेगुलेशन से कंप्लाइंस कर पाओगे, तभी आप एक्सीडेंट को कम कर सकते हो, तभी आप प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है ना. सो इस पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. फर्स्ट है टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रीप टेस्ट एंड टॉर्शन टेस्ट. ठीक है, तो लगभग आपके पास में 8 टाइप ऑफ टेस्ट है. इनमें से हम सारे तो नहीं देखेंगे, 4-5 टेस्ट देख लेंगे. ठीक है, सो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड. इस तरह से कुछ लोड होगा. कंप्रेसिव का होगा कि व्हेन इट इज द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड. ठीक है, हार्डनेस टेस्ट क्या होगा, आपको जैसा इंडेंटेशन चेक करना है, इंडेंटेशन. ठीक है, इंडेंटेशन चेक करना है, स्क्रैच चेक करना है, ये भी है. ठीक है, इम्पैक्ट आपको देखना है कि एक बार में से कुछ, एक होता है ना मटेरियल को किस तरह से आप लोड कराते हैं. एक होता है ग्रेजुअल लोडिंग होता है ना, ग्रेजुअल लोडिंग होता है. एक होता है सडन लोडिंग होता है. ठीक है, तो आपको देखना है सडन लोडिंग का जो भी केस है ना, सडन लोडिंग, तो वो इम्पैक्ट टेस्ट. जैसे आप क्या करते हो, आपने कुछ भी जैसे आपने देखा होगा जितने भी लोहार वुहार होते हैं ना, तो क्या करते हैं कि आपका लोहे का कुछ ब्लॉक होता है, फिर उसको ऐसा हथौड़े से ऐसा मारते हैं. हथौड़े से मारता है ना, इम्पैक्ट से मारा, एकदम से तेजी से मारा है ना, एकदम तेजी से मारा, तो वो क्या हो रहा है, वो सडन लोडिंग आ रहा है. ठीक है, सडन लोडिंग आ रहा है, तो उस पर आपको देखना है कि कितना आपका क्या इम्पैक्ट टेस्ट है. ठीक है, देन बेंडिंग टेस्ट होता है. बेंडिंग टेस्ट आपका वही 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट होता है. तो इस तरह से आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा
और ऐसा आपको ऐसा सेंटर पे आप एक लोड लगा के देखेंगे कि कितना ये इसका बेंडिंग निकल के आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन निकल के आ रहा है ना, कितना वाई निकल के आ रहा है, कितना इसका स्लोप निकल के आ रहा है। तो जो 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट होता है ये कहलाता है, ठीक है। फटीग टेस्ट अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में, ठीक है, साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में आप फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द फटीग लाइफ, है ना, फटीग लाइफ क्या है और फटीग लिमिट क्या है, ठीक है। और फटीग लिमिट के साथ में देखेंगे कि इसका जो वो क्या है ना, फटीग बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ क्या है ना। तो मतलब क्या है, यहाँ से आप क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एसएन कर्व फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे टेंसाइल टेस्ट से आप सिग्मा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटीग टेस्ट से आप एसएन कर्व जो बताया था ना अभी पिछले में, तो वो चीज़ आप फाइंड करते हैं, ठीक है। क्रीप टेस्ट में आप देखते हैं कि एट हाई टेम्परेचर में क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। टॉर्शन टेस्ट में आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका सैंपल होता है उसको आप एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देते हो, फिर उसको आप रोटेट करते हो एंड इट रोटेट्स अंडर सम टॉर्क। तो उसके ऊपर में जो आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होगा ड्यू टू टॉर्शन, वो आप फिर उसकी लिमिट देखते हो, ठीक है। सो वी हैव ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। इसमें से एक टेस्ट और ऐड होता है, दैट इज अ वियर टेस्ट, है ना, वियर टेस्ट होता है। तो इसमें से एक होता है हमारे पास में ड्राई स्लाइडिंग, ये होता है आपका पिन ऑन डिस्क टेस्ट, है ना, ये होता है पिन ऑन डिस्क टेस्ट, ओके। ये किस तरह का होता है, ड्राई स्लाइडिंग टेस्ट बोलते हैं इसको, ड्राई स्लाइडिंग टेस्ट, ओके। तो इसका कैसे, ये भी वियर एंड टीयर कर रहे हैं ना, वियर कितना हो रहा है, तो आपको देखना है कि मटेरियल को आप स्लाइड ऐसे ऐसे करके देखते हो, फिर आप देखते हो कि स्लाइड होने के बाद में कि कितना उसका डेब्री आपका बना, ठीक है। तो आप इसको डेब्री को देखते हो ना, डेब्री कितना निकला, ओके। डेब्री या बोल सकते हैं वियर रेट कितना आया है एट गिवन बोल सकते हैं एट गिवन लोड, है ना, जो भी लोड पे आया। तो उस तरह से आप वियर रेट को आप फाइंड करने की कोशिश करते हो। तो ये होता है पिन ऑन डिस्क टेस्ट, ओके। चलिए, तो ये सब बेसिक बात हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की। अब कुछ इसमें से हम देखेंगे, इनमें से 3-4 टेस्ट कुछ देख लेंगे इन डिटेल। टेंसाइल टेस्ट देख लेंगे, हार्डनेस देख लेंगे, इम्पैक्ट देख लेंगे, फटीग देख लेंगे, क्रीप देख लेंगे, है ना। ये सब कुछ आपका समझ लेते हैं, ओके। देन ये जो टेंसाइल टेस्ट है, दिस इज डन ऑन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ओके, और यूटीएम मशीन इन ब्रीफ, ओके। तो यूटीएम मशीन में आप कंप्रेसिव टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस यूटीएम मशीन के बहुत फ़ायदे होते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं, टेंसाइल टेस्ट तो कर ही सकते हैं, इसके ऊपर में आप बेंडिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3-4 प्रकार के टेस्ट आप कर सकते हैं अकेले एक यूटीएम मशीन पे, ठीक है। ये आपके कॉलेजेस के लैब्स में आपने देखी होगी यूटीएम टेस्ट मशीन होती है। अब ये भी आजकल कंप्यूटराइज्ड आ रही है, तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको आराम से जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो बढ़िया सा आपको आपके जो मॉनिटर होता है, जिससे सटा हुआ जो मॉनिटर होगा इससे कैलिब्रेटेड हुआ, तो उस पर आपको दिख जाएगा, ओके। सो जस्ट रीड दिस स्लाइड। सो it uses the load cell and extensometer to measure to apply the measured force to an test specimen and percentage elongation, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपको लोड अप्लाई करना है और कितना इलोंगेशन है, कितना निकल के आया, तो वो सब आपका लोड सेल और एक्सटेंसोमीटर से होता है, ठीक है। एक्सटेंसोमीटर क्या करता है, जस्ट इट मेजर्स, ओके, इट मेजर्स स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन कितना हुआ वो मेजर करता है, चेंज इन लेंथ एक्सटेंसोमीटर, ओके। उसके बाद में आपको लोड वर्सेस इलोंगेशन आपको प्लॉट करना होता है, उसको आप फिर पढ़ते हो कि कहाँ पे फेल हो रहा है, कहाँ पे यील्ड पॉइंट है, डिफरेंट थिंग्स आप फाइंड करते हैं, ठीक है। सो लाइक आप क्या फाइंड करते हैं यहाँ से, यू फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, ये सब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका यहाँ पर है गिवन है यूटीएम मशीन का बेसिक स्कीमेटिक। ये लोड सेल है, यहाँ पे आप लोड लगाते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हो, इस पर्टिकुलर लोड लगाते हो, आप कितना लोड लगाओगे, फिर उसके बाद में इसको आप मूव करोगे, ठीक है। ये नीचे नीचे क्रॉस साइड इस तरह से जाएगा। आप पर्टिकुलर आप लोड लगाएंगे, ठीक है, कितना 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, कितने भी लोड का आप लगाएंगे, फिर इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, ऐसा तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इस तरह से ये इस तरह से ब्लॉक आपका इस तरह से ऐसा खींचेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंसोमीटर यहाँ पे ये क्या नोटिस करेगा, चेंज इन लेंथ, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेन को मेजर करेगा, ओके। चलिए,
So a machine which applies a tensile force, ठीक है, to the specimen and then measures that force and also elongation. So it is a machine which measures the elongation and the stress to fail also. Okay. तो यहाँ पे जो आपका स्पेसिमन होता है, दिस इज स्टैंडर्ड स्पेसिमन है आपका, ASME ने आपका डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो गेज लेंथ होगा वो आपका क्या होगा, 50 mm होगा। ये जो गेज लेंथ है ना, जिसका आपको गेज लेंथ क्या होता है, वो लेंथ जिसका आपको चेंज इन लेंथ मेजर करना है ना। तो एक्सटेंसोमीटर आपका जिस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर देखेगा कि जैसे अगर आपने बोला है कि बिफोर टेस्टिंग, ओके, बिफोर टेस्टिंग आपको देखना है कि ये गेज लेंथ क्या निकल के आ रहा है, 50 mm है, ठीक है। और अगर आफ्टर टेस्ट ये निकल के आ गया, कितना आ गया आपका, ये निकल के आ गया जैसे 52.5 mm निकल के आ गया, तो आपको स्ट्रेन यहाँ से मिल जाएगा 2.5 का, है ना, 2.5, ओके। सो स्ट्रेन इज 2.5 डिवाइड बाई 50 into 100 ना। सो दिस इज द स्ट्रेन, ओके। सो दिस इज द स्ट्रेन वैल्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो गेज लेंथ कौन सा लेंथ होता है, जहाँ पे एक्सटेंसोमीटर चेंज इन लेंथ को मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये पार्ट होता है ना, ये आपका किसके लिए होता है ना, ये ऐसा ऊपर में आपको यहाँ पर जो क्या कहते हैं ग्रिप करने के लिए होता है ना, यहाँ पे ग्रिप करके रखा है। तो ये ग्रिप करना है ऑब्वियसली ताकि वो छिटक के बाहर ना जाए, ओके। सो इन ऑर्डर टू ग्रिप इट प्रॉपरली, सो ये दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज रिक्वायर्ड, ओके। एंड डायमीटर इज गिवन बाय 12.8 mm। तो ये जो है ना, तो ये इसको 12.8 को अगर इंचेस में लिखना है तो 0.505, और ये 50 mm को इंच में लिखना है तो 2.25 इंच, ओके। तो ये सॉरी 2 इंच ना, यहाँ पे गेज लेंथ ये दिया, ये तो रिड्यूस सेक्शन है, ओके। द गेज लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच, ओके। तो ये है आपका फॉर राउंड, है ना, राउंड स्पेसिमेन के लिए है ये आपका स्टैंडर्ड डायमेंशंस, ओके। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे एक गेट 2020 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। सो दिस इज ऑन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो यू हैव टू मैच द फॉलोइंग की पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट से क्या इफेक्ट आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टेम्परिंग, वी हैव क्वेंचिंग, वी हैव अनेलिंग, वी हैव नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो शुरू करेंगे नॉर्मलाइजिंग से। तो नॉर्मलाइजिंग का काम क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग का काम होता है स्ट्रेंथ को बढ़ाना, है ना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग। अब देख लेंगे यहाँ पे S1 है, तो S1 किस में है, S1 है आपका A में है, S1 है आपका D में है, तो B and C हमने काट दिया, तो B and C काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचा, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेंचिंग का काम क्या होता है, आपका हार्डनेस बढ़ाना होता है ना। क्वेंचिंग आपका, क्वेंचिंग से आपको क्या बनता है, एक तरीके से मार्टेनसाइट मिलता है। मार्टेनसाइट मतलब क्या होता है, आपका हार्डनेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो हार्डनेस बढ़ रहा है तो आपका Q3 हो जाएगा, तो Q is 3, ओके। सो Q3 आपको दोनों कंडीशन में मिल रहा है, तो अब हमको फिर P एंड R भी देखना है। तो टेम्परिंग कब करते हैं आप, टेम्परिंग करते हैं क्वेंचिंग के बाद में, ठीक है। सो इसको मैं मिला लेता हूँ यहाँ से, नॉर्मलाइजिंग या स्ट्रेंथनिंग के पास में, ओके, जस्ट लेट मी डिलीट एवरीथिंग। नॉर्मलाइजिंग या स्ट्रेंथनिंग के बाद में क्वेंचिंग या आपका हार्डनिंग के पास में, ओके। अब क्या है आपका, ओके। तो टेम्परिंग जो करता है, क्या करता है टेम्परिंग को कब करते हैं, आफ्टर क्वेंचिंग करते हैं ना। क्वेंच करके आपको मार्टेनसाइट मिल गया, बहुत ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल मिल गया। अब आपको क्या करना है, उसका आपको टफनेस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो टफनेस को इम्प्रूव करना है तो टेम्परिंग हमारे लिए क्या ऑप्शन देता है, यहाँ पे ऐसा टफनिंग आपका ऑपरेशन देता है, ठीक है। बचा ये आपका फाइनली अनीलिंग। अनीलिंग क्या करता है, आपका मटेरियल का डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। डक्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेगा, बाय सॉफ्टनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया P2 एंड यहाँ से क्या निकल के आ गया, आपका P2 निकल के आ गया, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, R आपका 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना यूजुअली काफ़ी लोग इन दोनों में कंफ्यूज थे, ठीक है। और कन्फ्यूजन होना भी चाहिए, है ना। कोई इसमें से क्वेश्चन ही ऐसा बनाया गया है, क्योंकि क्या होता है, जो आप टेम्परिंग में जब आप चीज़ों को यहाँ पे टफनिंग बोल रहे हो तो आप इसको सॉफ्टनिंग भी तो बोल ही सकते हो ना एक तरीके से, क्योंकि
सॉफ्टनिंग करने कैसे होता है, क्योंकि आप मटेरियल को मार्टेनसाइट से आप इसको टेम्पर कर रहे हो, ठीक है। टेम्पर कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, आप मटेरियल को थोड़ा सा डक्टाइल कर रहे हो ना। डक्टाइल करो तो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको सॉफ्टन कर रहे हो। तो सॉफ्टन कर रहे हो तभी तो टफन करोगे, है ना। अगर सॉफ्टन नहीं करोगे तो टफन कैसे करोगे। और यहाँ बात हो रही है अनीलिंग की, तो अगर आप इसको जब सॉफ्टन करोगे तो इसको टफन भी तो कर रहे हो ना, एक ही बात है। मतलब डक्टिलिटी बढ़ाओगे तो टफनेस तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। यू इंक्रीज द डक्टिलिटी एंड यू इंक्रीज द टफनेस, है ना। डक्टिलिटी बढ़ाओगे तो टफनेस अपने आप ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ना कन्फ्यूजिंग करा हुआ था। तो अब आपको अगर मेरा पीपीटी देखिए पिछले क्लास में, तो टेम्परिंग का जो मेन दिखाया था वो क्या है, टफनिंग ही करता। टफनिंग मतलब इसका क्या काम होता ना, कि आपको इसका टफनेस का वैल्यू, मेन इसका मोटो है टफनेस के वैल्यू बढ़े, ठीक है। टफनेस का वैल्यू बढ़े तो वो कैसे बढ़ा रहे हो आप, सॉफ्टनिंग से बढ़ा रहे हो, है ना। तो मतलब ये दोनों आंसर एक तरह से सही होने चाहिए। तो टफनेस कैसे बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ा के, ऑब्वियसली बेसिक सी बात है ना। सॉफ्टनेस कैसे बढ़ेगा, टफनेस बढ़ा के। तो अनीलिंग में भी आपको दोनों ऑप्शन निकल के आता है, टेम्परिंग में भी दोनों ऑप्शन निकल के आता है। लेकिन फिर अब आंसर की में ये फाइनल ए आंसर ही मार्क किया गया है, ठीक है। सो यही आपको याद रखना है कि जो टेम्परिंग है वो हम टफनेस के लिए बोलते हैं, ठीक है। टी फॉर टेम्परिंग एंड टी फॉर टफनेस, टी फॉर टेम्परिंग, टी फॉर टफनेस, है ना। बस ऐसे इसको चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, एंड विल मीट इन द अपकमिंग लेक्चर विद डिफरेंट your mechanical test. Okay, so we have done only tensile test today, so next class we'll see what are the different hardness tests, what are the different impact test and creep test. Okay, and then maybe also some non-destructive testing also. Okay, so have a good day. Thank you.